মেজাজকে একদম ঠান্ডা করে দিয়েছেন। তিনি জিরো টলারেন্স দেখিয়েছেন মহিলাদের প্রতি কোনো অসম্মানকে। আমরাও তাই মনে করি এই একইভাবে পশ্চিম বাংলায় বিজেপি আসলে আর আমরা কামদুনি, আর আমরা পার্ক স্ট্রিট, আর আমরা হাসখালি এবং আরজি কর, তারপরেও কসবা ল কলেজ, দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজ, একের পর এক ঘটনা ঘটবে। এ ঘটনা চলতে দেওয়া যাবে না। এখানেও ঠিক একই রকম ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে, মায়েদেরকে যারা অসম্মান করে তাদের বিরুদ্ধে ঠিক একই মডেলে পশ্চিম বাংলায় বুলডোজার চলবে, একই মডেলে চলবে। ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে বিজেপির জিরো টলারেন্স থাকবে। অথচ গোটা দেশে বিরোধীরা প্রচার করেন উনার বুলডোজার নিয়ে কথা হয়, কখনো বলেন না উনার টলারেন্স নিয়ে। যখন কৃষক বিল নিয়ে লখনৌ টু দিল্লি একটা দেশের প্রধান যোগাযোগ রাস্তা 6 মাসের বেশি অবরুদ্ধ রাখা হয়েছিল, তখন ন্যূনতম যেটাকে তিনি 6 মিনিটে বুলডোজার চালাতে পারতেন, 6 মাস ধরে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করেছেন, কখনো কোনো পেশেন্স হারাননি। নিজের উন্নয়নের সঙ্গে, দেশের উন্নয়নের সঙ্গে, রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে তিনি সদা সতর্ক, সবসময় তিনি জড়িয়ে থাকেন। তিনি আজকে এখানে আসছেন এবং তার যে জিরো টলারেন্স নীতি এগেনস্ট ক্রাইম, আমরা তার কাছ থেকেই শুনব এবং একই সঙ্গে শুনব যে কিভাবে তিনি আমাদেরকে উদ্দীপিত করে দিয়ে যান। দেখুন, উনি আসছেন কোন রাজ্য থেকে? যেখানে রাম জন্মভূমি, আমাদের আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণের জন্মভূমি। তো রাম আর কৃষ্ণের জন্মভূমি যে রাজ্য, সেখান থেকে আসছেন তিনি, আমাদের দুই আরাধ্য দেবতার। আর আমরা তো এখানে রামকৃষ্ণের দেশের মানুষ, ফলে মেলবন্ধন তো অনেকটাই রয়েছে আমাদের। তাই সনাতনী প্রক্রিয়া এবং সংস্কৃতি এটা আমাদের চলতেই থাকবে, এর মধ্যে কোনো হবে না। আর আমরা অবশ্যই উন্নয়নের মডেলটাকেই খুঁজে নেব। আমাদের ছেলেদের কর্মসংস্থান হবে, আমাদের ছেলে মেয়েদের অন্য রাজ্যে পরিযায়ী হিসাবে যেতে হবে না, এই বাংলায় তারা কাজ পাবে, তাদের চাকরিগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া হবে না। দেখুন, কৃষ্ণের আর এক নাম গোপাল। এই বাংলায় দুই গোপাল কিন্তু বিখ্যাত। 750 খ্রিস্টাব্দের কথা ভাবুন, গোটা বাংলা জুড়ে যখন মাৎসন্যায় পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল, তখন গোটা বাংলা জুড়ে সুশাসন এনেছিলেন। আবার 1947 সাল গ্রেটার ক্যালকাটা কিলিং, গোপাল মুখোপাধ্যায়, গোপাল পাঁঠা নামে যিনি খ্যাত, সেই গোপাল পাঁঠা সেদিন রুখে দাঁড়িয়ে গোটা কলকাতা আন্দোলনটাকে একমুখী করতে দেননি। গ্রেটার ক্যালকাটা কিলিং এর বিরুদ্ধে তিনি কয়েকজনকে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে সেদিনের প্রতিহত করতে পেরেছিলেন। আজ আমাদেরকে প্রতি বুথে আমাদের প্রত্যেককেই গোপাল হয়ে উঠতে হবে। যে কোনো এই যে দুর্বৃত্তের দলের বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদী গোপাল হয়ে আমাদেরকে কিন্তু এবারের নির্বাচন বৈতরণী পেরোতে হবে, যাতে এই দুর্বৃত্তের দল যেন আগামী দিনে মাথা তুলে নাড়াতে না পারে। সবাই যোগীজির সভা থেকে একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফিরবেন যে আমাদের বুথটা আমরা লড়াই করে জিতে নেব, তাহলেই
প্রত্যেকেই যদি আমরা সেই সংকল্পটা নিয়ে ফিরি, তাহলে এই দুর্বৃত্তের দল অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হবে। সবাই অবশ্যই আসন্ন নির্বাচন আর মাত্র কয়েকটা দিন, সেই নির্বাচনে যেটুকুন আমাদের সাফল্য লাভের জন্য যা পরিশ্রম করার দরকার সেটা অবশ্যই করবেন এবং জয়যুক্ত হয়ে ৪ঠা মে তারপরে আমরা আবার মিলিত হব, এই প্রত্যাশা রেখে সবাইকে আমার অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ভারত মাতার চরণে প্রণাম জানিয়ে। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। জোরের সঙ্গে বলতে হবে, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই। এবার বক্তব্য রাখবেন পটাশপুরের সম্মাননীয় প্রার্থী শ্রী তপন মাইতি মহোদয়। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय मां काली, जय मां काली। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ভারতবর্ষে শুধু নয় সারা বিশ্বের ভেতরে প্রভু শ্রী রামচন্দ্রের বরপুত্র, ভারতবর্ষের একমাত্র চমকতে हुए কোহিনূর, তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারতবর্ষে যদি কারোর মডেল দেখাতে চাই তাহলে যোগীজির আমরা মডেল দেখাই, তাই তো? সেই যোগীরাজ, সেই আদিত্যনাথ যোগীজি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন। আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের বদলানোর সময় এসে গেছে, আর দুটো তারিখ 23 তারিখ আর 29 তারিখ তয় করে দিয়েছে ইলেকশন কমিশন। এই দুটো তারিখেই এই যে ডায়ন সরকার, এই যে পুতনা রাক্ষসী, তাকে কিন্তু বিদায় দিতে হবে। এই পুতনা রাক্ষসীকে আমরা এই দুটো তারিখের ভেতরে বিদায় দেব। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অনেক রক্ত চুষেছে, মা মাটি মানুষ যার নামে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়েছিল, সেই মাকে অসম্মান করেছে, ধর্ষণ করেছে, সেই মায়ের ধর্ষণের রেট তয় করেছে, সেই মায়ের মাটিকে লাল করেছে, মাটিকে বিক্রি করেছে, মাটিকে চুরি করেছে। আর মানুষকে এরা 15 বছরেই অপমান করেছে, মানুষকে অত্যাচার করেছে। এই অত্যাচারের জবাব মানুষ এবারে কিন্তু আর কয়েকটা দিনের মধ্যেই দেবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৈরি আছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পিঠ ঠেকে গেছে, এবারে কিন্তু সামনে লড়াই করার জন্য এগিয়ে এসছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবারে 23 তারিখ, এবারে 29 তারিখ তয় করে নিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি আসছে, পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হবে। আর পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় সরকারের পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলে দিয়েছেন যে আমরা মায়েদেরকে 3000 টাকা করে দেব, আমরা মায়েদেরকে 3000 টাকা করে দেব এবং প্রত্যেকটা মায়েদের মাতৃশক্তিকে বাসে ফ্রি, বাসে ফ্রি, বাপের বাড়ি গেলেও ফ্রি আর শ্বশুর বাড়ি এলেও ফ্রি, সরকারি বাসে যাওয়া আসা ফ্রি। আর কি দেবো না, প্রত্যেকটা যুবক যুবতী যারা চাকরি করতে পারেনি, যারা চাকরি পায়নি, যতক্ষণ পশ্চিমবঙ্গে চাকরি হচ্ছে না ততক্ষণ কিন্তু 3000 টাকা করে দেবো, 3000 টাকা করে পাবে। আর পশ্চিমবঙ্গে 5 বছরে আমাদের সরকার এলে 1 করোড় আমরা চাকরি বন্দোবস্ত করব এবং শিল্পায়ন হবে, পশ্চিমবঙ্গে সার্বিক উন্নয়ন হবে, পশ্চিমবঙ্গে যে গরিমা সেটা ফিরে আসবে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখি
এই 15 বছরে মমতা ব্যানার্জি সরকার গ্রামে গ্রামে মদের দোকান, অঞ্চলে অঞ্চলে বাংলা মদের দোকানের সংস্কৃতি তুলে ধরেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই গানের সংস্কৃতি কিন্তু পশ্চিমবাংলায় আর নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসবে, সেই সংস্কৃতি আবার ফিরে আসবে। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসবে, প্রত্যেকটা মায়েদের, প্রত্যেকটা মাতৃশক্তির সম্মান হবে, তারা সুরক্ষিত থাকবে, আমাদের আপনাদের সন্তান সুরক্ষিত থাকবে। পশ্চিমবাংলা স্বাস্থ্য, পশ্চিমবাংলা শিক্ষা, যেটা আগে আমরা গর্ব করতাম, কিন্তু বর্তমানে এই সরকারের বদৌলত পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আমরা জানি ফরওয়ার্ড টু ফরওয়ার্ড লিখে দেবে, কোথাও ট্রিটমেন্ট হবে না। এখান থেকে উড়িষ্যা যেতে হয়, এখান থেকে ব্যাঙ্গালোর যেতে হয়, এখান থেকে ভেলোর যেতে হয়, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় কোনো স্বাস্থ্যের সুচিকিৎসা নেই। এবারে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি আসছে, পশ্চিমবঙ্গে সুস্বাস্থ্যের বন্দোবস্ত হবে, প্রত্যেকটা এইমস হবে উত্তরবঙ্গে বলে দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, এবং প্রত্যেকটা স্বাস্থ্য বিভাগ সুন্দর হবে। এই যে পেছনে পেছনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন, এপাশে আমার ডান দিকে, মঞ্চের ডান দিকে যারা আছেন আমাদের কার্যকর্তা, তাদেরকে বলছি আপনারা পেছনের দিকে চলে যান। যোগীজি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছেন। এ যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ডান দিকে, মঞ্চের ডান দিকে, ওপাশ থেকে রাস্তার দিক দিয়ে যারা আসছেন ওই পেছনের দিকে চলে যান। পেছনের চেয়ারও খালি আছে, পেছনের দিকে দাঁড়ান। সামনে এদিকে চলে আসুন, পেছনে এখানে দাঁড়াবেন না, ডান দিকে দেখতে পাবেন না আপনারা, পেছনে চলে যান, পেছনে খালি আছে পুরো। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ও দিদি তুই চলে যা, বাংলাদেশে চলে যা, আর এখানে তোকে মানায় না, দিদিকে আর এখানে রাখবো না। দিদি না পিসি না পুতনা রাক্ষসী, তাই তো নাকি? একে কিন্তু আর আমরা 23 তারিখ আর 29 তারিখের পরে রাখছি না। 4 তারিখের পরে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি এই পশ্চিমবঙ্গে সরকারে প্রত্যেকটা মানুষের সার্বিক উন্নতি হবে, নারীর সুরক্ষা হবে, বাংলাদেশের একটাও উদ্বাস্তুকে আমরা ঢুকতে দেব না, এই সরকার তৈরি হবে। সবাইকে আমি আবার শ্রদ্ধা সম্মান নমস্কার জানিয়ে, এবং মঞ্চে উপস্থিত আমাদের এই জেলার সভাপতি সোমনাথ রায় মহাশয় এবং এমপি, আদরণীয় এমপি রয়েছেন আমাদের জেপিএস রাঠোরজি, আমাদের অনন্ত নায়কজি রয়েছেন, আমাদের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আমাদের সবার অভিভাবক শ্রী শিশির অধিকারী মহাশয় রয়েছেন, আমাদের সৌমেন্দু অধিকারী মহাশয় এবং অন্যান্য সম্মানীয় নেতৃত্ব, সবাইকে আমি শ্রদ্ধা সম্মান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্যে বিরাম দিচ্ছি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় ভারত। যারা সভামঞ্চের ডান দিকে দাঁড়িয়ে আছেন আমি তাদের বলবো আপনারা এদিকের ব্লক খালি আছে, এদিকে চলে আসুন, এদিকে চলে আসুন। আর আমি সিকিউরিটি যারা চেক করছেন একটু তাড়াতাড়ি, যোগীজি আসার সময় হয়েছে, আমাদের দেবতুল্য কার্যকর্তাদের তাড়াতাড়ি মাঠে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিন। এই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন পূর্বতন সাংসদ তমলুকের এগরা বিধানসভার সম্মাননীয় প্রার্থী শ্রী দিব্যেন্দু অধিকারী মহোদয়, উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সকলের প্রিয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্মাননীয় শ্রী শিশির অধিকারী মহোদয়। আমি এখন বক্তব্য রাখবার জন্যে এগরা বিধানসভার সম্মাননীয় প্রার্থী পূর্বতন সাংসদ সম্মাননীয় দিব্যেন্দু অধিকারীকে আহ্বান করছি। भारत माता की जय श्री राम। मंचे उपविष्ट আমাদের রাঠোরজি, ভারত সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী সম্মানীয় শিশির অধিকারী মহোদয়, কাঁথি লোকসভার সাংসদ সম্মানীয় সৌমেন্দু অধিকারী সহ আমাদের এই সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সোমনাথ রায়
গৌরীশঙ্কর অধিকারী এবং আমাদের এখানকার প্রার্থী দক্ষিণ কাতির প্রার্থী অরূপ বাবু, রামনগরের প্রার্থী ভাই চন্দ্র, ইতিমধ্যে আমাদের নেতা, আমাদের দেশের সর্বোচ্চ শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথজি নন্দকুমার থেকে কাঁথির এই পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করছেন। আপনারা সকলে মিলে বলুন, যোগী आदित्यनाथ जी स्वागतम। हेलो हेलो যোগী आदित्यनाथ जी स्वागतम। যোগী आदित्यनाथ जी स्वागतम। এই যোগী आदित्यनाथ जिंदाबाद। এই नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। এই अमित शाह जिंदाबाद। এই যোগী जी जिंदाबाद। যোগী जी जिंदाबाद। भारत माता की जय श्री राम। যোগী जी स्वागतम। এই কাথির পুণ্যভূমিতে যোগী जी स्वागतम। এই কাথির পুণ্যভূমিতে যোগী जी स्वागतम। আমি কথা বাড়াবো না। আপনাদের ঘরের ছেলে হিসেবে আমি কেবল স্লোগান রেখেই আমার বিরাম রাখছি। আপনারা পদ্ম ফুলে ভোট দিয়ে আগামী দিনে ভ্রষ্টাচারী এই সরকারের বিদায় ঘটা এই আহ্বান রেখে সকলকে আরেকবার গৈরিক অভিনন্দন। জানিয়ে আমার কথার বিরাম টানছি। দেশপ্রাণের পুণ্যভূমিতে যোগীজি স্বাগতম। এই দেশপ্রাণের পুণ্যভূমিতে যোগীজি স্বাগত।
স্বাগতম স্বাগতম দেশপ্রাণের পুণ্যভূমিতে মোদিজি যোগীজি আসছেন, যোগীজি আসছেন, উলুধ্বনি যোগীজি আসছেন, উলুধ্বনি শঙ্করধ্বনি করুন, উলুধ্বনি শঙ্করধ্বনি করুন। যোগীজি স্বাগতম, যোগীজি স্বাগতম, যোগীজি স্বাগতম, যোগীজি স্বাগতম, এই যোগীজি স্বাগতম, যোগীজি স্বাগতম। अरे कौन आया भाई, कौन आया? अरे कौन आया भाई, कौन आया? अरे कौन आया भाई, कौन आया? अरे खातिर पुण्यभूमिते যোগীজি স্বাগতম, এই দেশপ্রাণের পুণ্যভূমিতে 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 যোগীজি স্বাগতম। এই कौन आया भाई, कौन आया? अरे 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 कौन आया भाई, कौन आया? এই কাতির পুণ্যভূমিতে যোগীজি স্বাগতম। स्वाधीनता आंदोलन की पीठस्थान कांथी की पुण्य भूमि पर आज हम लोग बहुत सौभाग्यवान हूं कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट हमारे बंगाल के बचाने के लिए कांथी के पुण्य भूमि पर हमारे हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री बचाने के लिए हम सबकी प्रेरणा के पुण्य भूमि पर आदित्यनाथ जी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हम सबकी प्रेरणा पुरुष योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनको स्वागत करता हूँ। मैं हमारे जिला अध्यक्ष सोमनाथ राय जी और आदरणीय सांसद सौमेंदु अधिकारी जी को अनुरोध करता हूं कि उत्तरीय और मां दुर्गा की मूर्ति देकर हमारे जोगी जी को स्वागत करे। जोगी जी स्वागतम, कातिर पुण्यभूमिते जोगी जी स्वागतम, कातिर पुण्यभूमिते जोगी जी स्वागतम, कातिर पुण्यभूमिते जोगी जी स्वागतम। अरे कौन आया भाई, कौन आया? अरे कौन आया भाई, कौन आया? अरे कौन आया भाई, कौन आया? मैं जोगी जी के इस पुण्य भूमि पर कांथी की जनता की ओर से हम सब स्वागत करता हूं जोगी जी को। अरे जोगी जी का हमारे डायरेक्शन से हम बंगाल के बचाएंगे। अभी वक्तव्य भाषण देने के लिए हमारे आदरणीय सांसद हमारे सांसद सौमेंदु अधिकारी महोदय के अनुरोध करছি। আমরা আজকে কাঁথির পুণ্যভূমিতে আসন্ন এই বিধানসভা নির্বাচন, যে ঐতিহাসিক নির্বাচনে 23 তারিখ 29 তারিখ নির্বাচন হওয়ার পরে 4 তারিখ ফলাফলের মাধ্যমে অত্যাচারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তোষণকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনের অবসান ঘটে মোদিজির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠন হবে। আমরা আজকে এই পুণ্যভূমিতে সৌভাগ্যবান। আমরা আমাদের মধ্যে
দেশের মহান নেতা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজিকে মহারাজকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি। আমি মঞ্চে উপবিষ্ট সমস্ত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, বিধায়কগণ, প্রার্থীগণ, প্রাক্তন সাংসদ শিশির অধিকারী মহাশয় সহ জেলা সভাপতি সোমনাথ রায় সহ সকল প্রভারীগণ, সকলকে আমার শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা। আপনাদের সকলকে নতমস্তকে প্রণাম নিবেদন করি। আমরা যার কথা শোনার জন্য আমরা সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। হাজার হাজার মানুষ এখন রাস্তায় আসছেন। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করে তার সময় নষ্ট করতে চাই না, তাই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। अभी हम लोगों का जो इंतजार था, अभी जोगी जी आ गए, उनका भाषण हम लोग सुनेंगे। मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट, हमारे बंगाल बचाने के लिए जोगी जी आए हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोग सुनेंगे। मैं जोगी जी को अनुरोध करता हूं कि अपना भाषण रखें। जोगी जी स्वागतम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज की इस चुनावी सभा में जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिशिर अधिकारी जी, एलओपी पश्चिमी बंगाल श्री सुरवेंदु अधिकारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री जेपीएस राठौर जी, आपके लोकप्रिय सांसद श्री सोमेंदु अधिकारी जी, जिलाध्यक्ष कांथी श्री सोमनाथ राय जी, जिला प्रवासी श्री अनंत नायक जी, दक्षिण कोटाई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री अरूप कुमार दास जी, पतासपुर विधानसभा उम्मीदवार श्री तपन मैती जी, मंडल अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर मॉडल जी, रामनगर असेंबली कैंडिडेट श्री देवेंद्र अधिकारी जी, विधानसभा कैंडिडेट आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित कांथी दक्षिण से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने समुद्र की लहरों में मछुआरों की मेहनत और संघर्ष की गूंज है, जहां हर घर में परिश्रम, परंपरा और स्वाभिमान की कहानी बसती है। यह भूमि नारी शक्ति के परिश्रम, अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ, युवाओं के दृढ़ संकल्प की भूमि है। जो भूमि तूफानों से टकरा करके भी हार नहीं मानती है, जो भूमि हर लहर से टकराती है, ऐसी
कांति दक्षिण की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, यह भूमि वैश्विक मंच पर भारत के सनातन के पताका को फहराने वाले युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की धरती है। याद करिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बंगाल की ये पावन धरा 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर की धरती है। आजादी की पहली लोप इसी बंगाल की धरती के बैरकपुर में जली थी, जिसने पूरे भारत को अपनी आगोश में लिया था। याद करिए, बंगाल की ही इस पावन धरा के महान सपूत खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए थे, लेकिन मन में एक ही भाव था, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। याद करिए, ये वही धरा है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा भारत का नायक दिया है। नेताजी ने भारत की आजादी के दौरान भारत के युवकों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और बंगाल की धरती फिर से आपका यही आह्वान कर रही है कि बीजेपी आती है, टीएमसी सिंहासन खाली करो, क्योंकि बंगाल की संस्कृति को फिर से सम्मान चाहिए। बहनों और भाइयों, ये वंदे मातरम की धरती है। याद करिए, 150 वर्ष पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने अमर कालजयी कृति आनंद मठ की रचना करके भारत की आजादी को एक अमर मंत्र वंदे मातरम का दिया था। ये वंदे मातरम की अनुगूंज पूरे भारत को अपने साथ जोड़ने में सफल रही थी। याद करिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का, राजा राम मोहन राय का, जगदीश चंद्र बसु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देश बंधु चित्तरंजन दास, सत्येंद्र नाथ बसु और भारत की अध्यात्म को एक नई ऊंचाई देने वाले रामकृष्ण परमहंस, लाहिड़ी महाशय। और ये वही पावन धरा है जिसने भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद को भी आगे बढ़ने और भावाश्रय सेवाश्रम संघ के माध्यम से भारत की राष्ट्रवाद की अलग को दुनिया के अंदर जगाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये धरती बिपिन चंद्र पाल की धरती है और ये धरती भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती भी है। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी धरती में पैदा होकर क्या आह्वान किया था? उन्होंने कहा था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर के अंदर अगर बंगाल का भी कोई नौजवान जमीन लेना चाहेगा तो अब उसको कोई रोक नहीं सकता है। वह भी कोलकाता हो या फिर श्रीनगर, वह आराम से वहां आ जा सकता है, वहां संपत्ति खरीद सकता है। यह सपना कभी देखा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और उसे साकार किया है आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने। याद करिए, आज वही बंगाल, जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, भारत की इकोनॉमी में जिस बंगाल का योगदान 1/3 से अधिक था, आज उस बंगाल में पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने और 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने उस बंगाल को नोच डाला है, कंगाल बना करके रख दिया है। यहां पर किस हद तक भ्रष्टाचार होता है, चक्रवात में सहायता के नाम पर भ्रष्टाचार, गरीबों के हक का पैसा कटमनी में टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। मछुआरों और किसानों को सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। यहां विकास नहीं, सिर्फ वसूली का तंत्र हावी होता है। याद करिए, कभी शिक्षा, संस्कृति, कला, अध्यात्म और उद्यम की भूमि रहा बंगाल, आज बदहाल है, बदहाल। अपनी पहचान के लिए मोहताज है। टीएमसी कही जाने वाली ये पार्टी, टी का मतलब टेरर, टी का मतलब तुष्टीकरण, एम का मतलब माफिया राज और सी का मतलब कटमनी या करप्शन। यानी ये टीएमसी टेरर और तुष्टीकरण का, माफिया राज का, कटमनी और करप्शन का पर्याय बन चुका है। और ये टेरर और तुष्टीकरण का जवाब, ये माफिया राज का जवाब, ये कटमनी और करप्शन का जवाब केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार में है, मोदी जी के पास है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी इससे भी खराब सरकार थी, इससे बदहाल स्थिति थी। हर दूसरे दिन दंगा होता था, जनता को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, बहन और बेटी की सुरक्षा खतरे में रहती थी, व्यापारी पलायन कर रहा था, उद्योग बंद हो रहे थे, नौजवान के लिए रोजगार नहीं था, अन्नदाता किसान के खेत के लिए पानी नहीं था, उसकी उपज का दाम नहीं मिलता था, चारों ओर अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, अव्यवस्था थी, दंगे थे, हर जगह सत्ता के समानांतर माफिया और गुंडों की सरकार चलती थी। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है, आज उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। टेरर समाप्त, तुष्टीकरण समाप्त, माफिया राज समाप्त, कटमनी समाप्त, करप्शन समाप्त,
और माफिया और टेरर के ऊपर यूपी का बुलडोजर कैसे चलता है आपने देखा होगा, धड़धड़ा के चलता है। ये जो बुलडोजर खड़े हैं ना, ये बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया की पसली को भी तोड़ता है, खूब तोड़ता है। बेटी और बहन की इज्जत पर हाथ डालने वाले गुंडे के पसली को मचल डालता है ये बुलडोजर। माफिया की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों के लिए मल्टी लेवल आवासीय सुविधा देती है, हाई राइज बिल्डिंग देती है, आवासीय सुविधा देने का काम करता है यही बुलडोजर। और वही कहने के लिए मैं आया हूं, आज उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मस्जिदों से शोरगुल नहीं होता है। गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध है। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून है। न लव जिहाद है, न लैंड जिहाद है। केवल और केवल राम राज्य की स्थापना भूमि अब उत्तर प्रदेश है। याद करिए, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, आरजेडी, इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन आप सभी राम भक्तों के कारण अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। भगवान राम का यह मंदिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम के उद्घोष को करता हुआ दिखाई देता है। इसकी गूंज दुनिया के अंदर सुनाई दे रही है कि जिस दिन 145 करोड़ का भारत मोदी जी की आवाज में आवाज मिलाकर के चलेगा, भारत विरोधी ताकतों के हौसले पस्त हो जाएंगे, वे सभी ध्वस्त हो जाएंगी और ये भगवा हर घर में लहराता हुआ दिखाई देगा। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। एक टीएमसी ने बंगाल की पहचान को संकट में ला खड़ा किया है। याद करिए, मोदी जी जो पैसा भेजते हैं गरीब के मकान के लिए, गरीब के राशन के लिए, गरीब के स्वास्थ्य के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, गांव के विकास के लिए, वह सब पैसा टीएमसी के गुंडे हजम कर जाते हैं। वह पैसा ही नहीं पहुंचने देते। याद करिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों ने 9 वर्ष में 40,000 बड़े उद्योग और 96 लाख छोटे उद्योग लगाए हैं। नोट करिए, 96 लाख एमएसएमई यूनिट और 40,000 बड़े उद्योग लगाए हैं। 3 करोड़ नौजवानों को एमएसएमई में, 65 लाख नौजवानों को बड़े उद्योगों में नौकरी मिली है। 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। मैं कहता हूं, बंगाल की सरकार, टीएमसी की सरकार बताए उसने 15 वर्षों में कितने बंगाल के नौजवानों को नौकरी दी है, वो नहीं बता सकती। यहां उद्योग प्लान कर रहे हैं। एक आंकड़ा यहां का बताता है कि बड़े पैमाने पे बंगाल से उद्योग बंद हुआ है। 12,000 से अधिक तो एमएसएमई यूनिट यहां की बंद हुई है। हर बड़ा उद्योग यहां बंद हो रहा है। कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाने वाला बंगाल आज भारत के अंदर क्राइम कैपिटल के रूप में
क्राइम कैपिटल के रूप में टीएमसी की अराजकता के नाम पर एक बदनुमा धब्बा बनकर के अपनी पहचान के लिए मोहताज हो रहा है। कभी भारत को पहचान देने वाला हमारा बंगाल आज स्वयं पहचान के लिए मोहताज दिखाई दे रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये सरकार यहां की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये यहां की डेमोग्राफी को बदल देना चाहती है। 570 किलोमीटर की फेंसिंग की कार्रवाई बांग्लादेश बॉर्डर पर करने के लिए केंद्र सरकार पैसा दिए, लेकिन टीएमसी की सरकार क्लियरेंस नहीं दे रही है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके आपके हक पर डकैती डलवाने और बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने का काम यहां की टीएमसी की सरकार करना चाहती है। बहनों भाइयों, ये टीएमसी नारा तो देती है मां, माटी और मानुष का, लेकिन आचरण देखो, मां आज बंगाल में रो रही है। माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है, मानुष भयभीत है। आओ, हमारे बंगाल के लोकप्रिय नेता अभी आपके सामने आए हैं। बहुत जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। वंदे वंदे वंदे। बहनों और भाइयों, आज बंगाल की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक हत्याएं, हत्या का प्रयास, महिला अपराध, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, और मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहां की जनता उर्दू नहीं, बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी, और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। और इसी बात को लेकर के आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है, नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती है।
बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के अंदर मां काली की पूजा होगी, भारत के अंदर मां गंगा की पूजा होगी, भगवान राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। हर बंगाल का व्यक्ति जय श्री राम का उद्घोष भी करेगा, वंदे मातरम का उद्घोष भी करेगा, और वही कहने के लिए आज हम सब आए हैं। बहनों और भाइयों, हमें यहां पर एक बार फिर से बंगाल की पहचान को बनाना है। देश के समृद्धतम राज्यों में बंगाल को खड़ा करना है। बंगाल का युवा में वह सामर्थ्य है, बंगाल में वह शक्ति है। बंगाल ने जब अंगड़ाई ली है, पूरा देश उसका अनुसरण किया है, पूरा देश अनुसरण किया है। कब नहीं किया है? हर हाल में किया है। प्रथम स्वातंत्र समर में किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर किया है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के समय किया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आह्वान पर किया है। हर समय बंगाल ने जो कहा, भारत ने वो किया। याद करिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प, और आज के बंगाल को देख करके हृदय द्रवित होता है। अंतःकरण से भविष्य को लेकर के चिंताएं होती हैं, और उसी चिंता को व्यक्त करने के लिए आज चुनाव के बहाने मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में कहूंगा, हमारा दायित्व बनता है, एक अवसर है आपके पास, यहां की डेमोग्राफी को हम बदलने नहीं देंगे, बंगाल की पहचान को संकट में नहीं होने देंगे। बहन बेटियों और यहां के बहन बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देंगे। याद रखना, जैसे उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, वही काम डबल इंजन की सरकार बंगाल में कर सकती है। और उस माफिया के खिलाफ, उस माफिया राज के खिलाफ हम सबको मिलकर के लड़ना है, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दक्षिण कोटाई विधानसभा क्षेत्र से स्वरूप कुमार दास को अपना प्रत्याशी बनाया है। 50 विधान क्षेत्र से श्री तपन मैती, रामनगर से श्री चंद्रशेखर मंडल और एगरा से दिव्येंदु अधिकारी, ये सभी, हाँ, सुमिता सिन्हा और शांतनु प्रमाणिक, ये सभी हमारे प्रत्याशी भगवानपुर खजुरी विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी प्रत्याशीगण यहां पर आए हैं। आप सबका, आप भी चलिए ना। हाँ, पीयूष कांतिदास चंडीपुर, ये सभी हमारे प्रत्याशी और बंगाल के हमारे नेता, बंगाल के हमारे नेता भी यहां पर खड़े हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दो, दोनों हाथ ला करके आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
আমরা যোগীজির আশীর্বাদ নিলাম, তাকে আমরা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাচ্ছি। যোগীজিকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাচ্ছি। হ্যালো আমাদের হ্যালো 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 আমাদের আজকের সভা আমরা এখানেই শেষ